Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, we are carrying on with the second chapter, economics, sectors of Indian economy. We are discussing about Indian economy and its outcome. Indian economic structure, of course, lot of things rests in the on the Indian economy. Lot of systems and lot of things rest on the shoulders of the government and different organizations who are looking after the economic structure in the country. While discussing this, we have come across many things which are pointing towards the economic development in the country. We are talking about economic development, but then with the development, only money doesn't matter. There are other aspects also that needs to be kept in mind. There are other aspects also that needs to be sorted out, that needs to be thought about. Under this program, when these ideas are being talked about, when these ideas are being discussed, तो हमको पता चल रहा है कि लोगों की क्या प्रॉब्लम है. What actually is the problem of the poor people, of the common people? We try to understand that. So under that category only, I'm just revising what we had done in the last class. We were talking about the organized sector versus unorganized. कुछ वैसे वर्सेस है ही नहीं. वर्सेस में क्या, वर्सेस में ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी कुछ तो काम मिल रहा होगा, कुछ तो अच्छा हो रहा होगा, लेकिन व्हेन वी सी इन डिटेल एक्चुअली कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. द अनऑर्गेनाइज सेक्टर पीपल आर वर्स्ट हिट. मैक्सिमम बेनिफिट एंड प्रॉफिट इज गिवन टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर पीपल. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने का तो फायदा ही अलग है. द बेनिफिट्स नो डाउट आर इमेंस. काफी फायदा है. सो इट नीड्स टू बी थॉट अबाउट, इट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट दैट हाउ द ऑर्गेनाइज सेक्टर आर वर्किंग. इसमें हमने कांता एंड कमल का एग्जाम्पल डिस्कस किया, वेयर कांता वॉज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, कमल वॉज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. और आखिर वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द वल्नरेबल ग्रुप. आखिर ये कौन है who are bound to work in the unorganized sector. So we talked about the vulnerable groups in unorganized sector. मतलब जो कि जिनको पता है कि उनको कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, they are never getting any facilities, they are bound to stay the way they are staying, their life would never change, they are convinced कि that's their life. तो कुछ कैटेगरीज, सम कैटेगरीज वी टॉक्ड अबाउट इन द, यू हैव टू कैटेगराइज इट, दिस वल्नरेबल ग्रुप्स. तो उसमें हमने बात किया था अबाउट द रूरल एरियाज एंड अबाउट द अर्बन एरियाज. रूरल एरियाज, गांवों में जो लोग रह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम अलग है, एंड शहरों में जो लोग रह रहे हैं, अर्बन एरियाज में द पीपल हु आर लिविंग, देयर प्रॉब्लम इज डिफरेंट. So when they are urban areas which are the unorganized sector, वहां पे it is comprising mainly of workers in small scale industry. Small scale industry के workers हैं, head load workers हैं, laborers हैं, garment makers, rag pickers. unorganized में ही है ना. इनके लिए क्या छुट्टी है, इनके लिए क्या वो है, what is the facilities that they are getting. The life is something that is very routine and they are convinced कि ऐसे ही जिंदा रहना है. इसमें क्या होता है, एक और चीज है where we are discussing about the social structure of society affecting the economic structure. ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि
in the society, the social structure that is there, उसको उसके वजह से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो रहा है, वेयर द लोअर कास्ट. अब देखो कास्ट सिस्टम, इकोनॉमिक्स में कास्ट का क्या मतलब बनता है, but then we are understanding majority of workers from the scheduled caste, scheduled tribes and backward communities, they find themselves in the unorganized sector. यहाँ पे देखो that backward communities, I'm writing the short form, scheduled caste, scheduled tribe, are mainly engaged in unorganized sector. Unorganized sector में ये लोग काम कर रहे हैं, and due to lower caste they are not getting the facility, लेकिन irregular, they are getting irregular and low paid work. These workers also face social discrimination. इरेग्युलर कभी भी काम में रख लेते हैं, कभी भी निकाल लेते हैं. एक फेनोमेना तो ये हो गया दैट द वर्क इज इरेग्युलर along with irregular work. These lower groups face social discrimination. जानते हो when we talk about it, मेरे को तो बहुत ही I feel this concept is very stupid. अरे जो काम कर रहा है उसको काम के बेसिस पे जानिए ना. What is to be done with the caste? Why to get the caste involved into this system? इसमें caste का क्या लेना देना है? We should not think it in that manner. लेकिन and the unorganized sector workers के लिए it is necessary for both economic and social development. ठीक है. अरे छोटी जात के हो, अरे इसको तो है, उसको तो चपरासी ही का ही नौकरी देना चाहिए. अरे टैलेंटेड है, look at his talent. Why to give him a job of a peon when the person is more talented just because he belongs to a lower caste? So caste system should be kept apart. Caste system should be kept on one side, and other things of or other qualities of the person must be considered. बाकी की चीजों को देखना चाहिए कास्ट सिस्टम को एक तरफ करके. लेकिन वी आर नॉट डूइंग दैट. एज अ रिजल्ट क्या होता है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में, एंड दिस इज व्हाट इज समथिंग दैट we need to work on. जो the people who are downtrodden, जो सताए हुए हैं, जो परेशान हैं, that means वो हमेशा परेशान ही रहेंगे. So there are sectors in terms of ownership also. Sectors in terms of ownership. ओनरशिप में क्या होता है, देयर इज द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर की चीजें अलग हैं, पब्लिक सेक्टर की चीजें अलग हैं. What we understand is economic activities into sectors, so we have already divided. अब ये भी होता है, it is also divided in on the basis of public sector, that is government is owning, and the private sector, which is ownership and assets and the delivery of services is in the hands of private individuals. Okay, so private sector, services and ownership are in the hands of private individuals. Got it? अब ये children, please you have to prepare this question for इसको 5 marks के लिए prepare कीजिएगा बोर्ड्स के लिए. The difference between the public sector and the private sector. Public sector, as we know it very well, government owns most of the asset.
गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ, ज्यादातर सारी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट को बिलोंग करती है पब्लिक सेक्टर में। पहला तो आप ये देख लीजिए कि प्राइवेट ओनरशिप हो गई, यहाँ पे गवर्नमेंट ओनरशिप हो गई। दूसरा क्या होता है, इसमें वी कैन से रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस। हियर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लेट्स कम टू द एग्जांपल्स, रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस, गुड एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, कितना अच्छा काम होता है। एंड प्राइवेट सेक्टर में लेट्स टॉक अबाउट टाटा टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और रिलायंस RIL। ओके, हियर एग्जांपल इज टिस्को एंड RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। गॉट इट। अब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या है? प्राइवेट सेक्टर को जो स्टैब्लिश किया है, द मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा, बस प्रॉफिट मेकिंग इज देयर मेन मोटिव। द मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज मेकिंग प्रॉफिट। ज्यादा से ज्यादा पैसा आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, इसी मोटिव के साथ ये आगे बढ़ते हैं। दे कैरी ऑन ऑल देयर एक्टिविटीज। ऑब्वियसली हर एक प्लान जो बनाते हैं, एवरीथिंग एंड एवरी आइडिया, एवरी प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रॉफिट। प्रॉफिट तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, इवन द गवर्नमेंट वांट्स प्रॉफिट, लेकिन इनकी सर्विसेज को लेने के लिए, प्राइवेट सर्विसेज के लिए वी नीड टू गिव मनी। हर जगह पैसे के इन्वॉल्वमेंट है। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनी। टू गेट देयर सर्विसेज वी हैव टू पे मनी। गॉट इट। इनको कंपनीज को पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, टू दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। ज्यादा से ज्यादा पैसे देने हैं, ठीक है। मनी इज टू बी गिवन इन लार्ज अमाउंट, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन सर्विसेज भी वैसी होती है। प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन दे चार्ज हाई अमाउंट, काफी अच्छा पैसा जब चार्ज कर रहे हैं तो सर्विसेज भी आपको उसी तरह के देंगे। पब्लिक सेक्टर में क्या है, पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट प्रॉफिट मेकिंग बॉडी। खाली प्रॉफिट का नहीं सोचते, प्रॉफिट तो सोचते हैं, लेकिन बहुत हाई चार्जेस, बिकॉज इट इज फॉर दी कॉमन पीपल। आम आदमी के लिए इन्होंने ये सर्विसेज शुरू की है। तो पब्लिक सेक्टर खाली प्रॉफिट मेकिंग बॉडी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पब्लिक सेक्टर्स आर गिविंग। अब गवर्नमेंट के पास ये पैसा कहाँ आ रहा है? प्राइवेट सेक्टर्स तो सारा पैसा हमसे ले रहे हैं। ऑल द मनी दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड फॉर आवर सर्विसेज इज चार्ज। हर एक चीज के ऊपर चार्ज होता है, लेकिन गवर्नमेंट रेजेस मनी थ्रू द टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ दीज सर्विसेज। रेलवेज, ठीक है, और रेलवेज ही हम नहीं कहेंगे, आई एम सॉरी, बार बार रेलवे दिमाग में आ रहा है ना, जब पब्लिक सेक्टर की बात करते तो रेलवे कम्स इन द माइंड। द गवर्नमेंट चार्जेस टैक्सेस, टैक्सेस जो हमसे लेते हैं तो किस लिए लेते हैं? टू अपकीप द
सर्विसेज ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का कामकाज आखिर कैसे चलेगा? तो गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस ले रही है, जब आप टैक्सेस ले रहे हैं तो उसको हमारे बेनिफिट के लिए इंप्लीमेंट कीजिए। So modern day government is spending lot of a wide range of activities are happening from the government side, and we can find it in every nook and corner. हर जगह पे हमको government efforts नजर आता है। Got it? अगर if the services are happening properly, we can very well see it. So several things that is needed to the society as a whole, पूरी सोसाइटी में जो चीज चाहिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट रीजनेबल कॉस्ट। इसको समझो, देखो ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज एंड यू कैन मेक इट आउट, बिकॉज आई एम गिविंग द नोट्स फ्रॉम द बुक ओनली। साइड बुक्स आप देख सकते हैं, आई डोंट डिनाई, आई डोंट से कि साइड बुक्स मत देखना, बट देन डोंट टोटली रिलाई ऑन द साइड बुक्स। अल्टीमेटली मार्क्स आपको वही मिलेंगे जो आप लिखेंगे, और आप लिखेंगे क्या? वही लिखेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। सो एनसीईआरटी बुक्स आर लाइक योर बाइबल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो सेवरल थिंग्स आर नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल। सेवरल थिंग्स नीडेड आर, देखो पूरे लोगों के लिए जो सर्विसेज चाहिए, द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट रीजनेबल कॉस्ट, आर नॉट प्रोवाइडेड एट रीजनेबल कॉस्ट बाय प्राइवेट सेक्टर्स। गॉट इट? प्राइवेट सेक्टर्स will not provide proper services। नहीं, सब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे बट इतना हाई चार्ज करेंगे ना, जैसे कि अभी इन रिसेंटली, अब लेट्स टॉक अबाउट महाराष्ट्र। इन महाराष्ट्र, स्पेशली इन मुंबई, द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड बाय द RIL, रिलायंस। पूरी इलेक्ट्रिसिटी, it takes care of the electricity, but you know the charges per unit charges are 20 rupees, 15 rupees, पूरा अच्छे से निकाल के। तो बिजली का बिल जो आता है 10,000, 20,000, 15,000 इस तरह से। यस, सम ऑफ माई रिलेटिव्स हु आर लिविंग इन मुंबई, तो आई वाज सो शॉक्ड। मैंने कहा है इतना बिल? जैसे तो वही बात है ना कि बिजली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी, इमीडिएट सर्विसेज आर देयर, तुरंत आदमी पहुंच जाएगा, आपका जो भी खराब हुआ है उसको सही कर देंगे एंड ऑल दैट थिंग। गॉट इट? तो सर्विसेज का ही पैसा है। लार्ज सम ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। कुछ चीजों के लिए ना बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। फॉर सम थिंग्स large sum of money is required. So for some things large amount is required. Got it? जो कि प्राइवेट सेक्टर्स कभी कभी नहीं अरेंज कर पाते हैं। द प्राइवेट सेक्टर्स आर अनेबल टू अरेंज। Got it? In such conditions, the public sector takes care of all that. Public sector जो है वो सारा ये charges लेते हैं अपने ऊपर। Of course, private sector is providing services. वो government को कितनी बार these private sectors are able to give services better than government. लेकिन still sometimes the private sectors are unable to take care. तो collecting money, सबसे बड़ी बात होती है collecting money from thousands of people who use these facilities is not easy. Collecting money from people using facilities, these facilities is not easy. ठीक है? आप क्या करते हो? आप सर्विसेज तो ले लेते हो, यू एंजॉय द इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन जब बिल पे करने की बात आती है देन यू डोंट डू दैट। तो एग्जाम्पल इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स,
अब सी कहां पे, वेयर इज द प्राइवेट सेक्टर्स लुकिंग बैक, और प्राइवेट सेक्टर्स आर अनेबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज. तो अब पब्लिक सेक्टर का एरिया देखो, जस्ट चेक द पब्लिक सेक्टर एरिया where the services are provided. For example, construction of roads, bridges, पुल बनाना होता है ना, नदियों के ऊपर पुल बनते हैं, रेलवेज के पुल बनते हैं, बिग टास्क. ओके, हार्बर्स, हार्बर्स जो समुद्र के किनारे में जहां पे शिप आके, इतनी बड़ी बड़ी शिप है, ठीक है. ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स आर वर्क ऑफ पब्लिक सेक्टर्स. गॉट इट. इरिगेशन होता है थ्रू डैम्स, ठीक है. द लिस्ट इज प्रोवाइडिंग दीज. तो दस government have to undertake such heavy spending. So government takes up these Hercule big task. बड़ा बड़ा काम जो है वो गवर्नमेंट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेते हैं, एंड दे कैरी ऑन द वर्क इन दैट वे ओनली. इसी तरह से द वर्क कैरीज ऑन. गवर्नमेंट टेक्स अप दिस टास्क, ओके, एंड carries on its work. तो अब आप ये देखो कि these जहां पे जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है, मेकिंग हार्बर्स है, रेलवेज है, इसमें क्या है ना कि कर तो लेंगे, इट्स नॉट दैट द प्राइवेट सेक्टर्स कैन नॉट डू इट, लेकिन द चार्जेस दैट द प्राइवेट सेक्टर वुड बी लिविंग, वो जो कॉस्ट लेंगे ना लोगों से, दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. वो सबके बस की बात नहीं है. सो द बिग टास्क ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क एंड इरिगेशन थ्रू डैम्स, डैम कंस्ट्रक्शन तो यहां रह ही गया, ब्रिजेस आर देयर, डैम कंस्ट्रक्शन, ये सारा काम जो है दिस इज लुक्ड आफ्टर बाय द पब्लिक सेक्टर. गवर्नमेंट नहीं करेगी. तो कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं वेयर द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट. प्राइवेट सेक्टर्स करते हैं, बट देन गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग सम एक्टिविटीज. गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग, किसको सपोर्ट करते हैं? गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग द प्राइवेट सेक्टर्स. यस, अरे गवर्नमेंट कितना काम करेंगे, और फिर प्राइवेट सेक्टर्स को भी तो काम मिलना चाहिए ना. देयर हैज टू बी some work given to the private sectors also. Employment generation है, and lot of other things are there जो कि that they need to take care of, जिसका पूरा पूरा ख्याल ये लोग रखते हैं. And government is providing support. Private sectors may not continue their production or business unless government encourages. I told you ना कि कुछ तो काम करेंगे. So government provides services to private sectors, and encourages them to take up economic activities. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, एंड प्राइवेट सेक्टर्स को जैसा भी सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट इज ऑलवेज स्टैंडिंग देयर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दैट इज देयर, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी. अब
इट विल पुश, भाई हर एक चीज में तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इंडस्ट्रीज अगर ले डाउन हुआ है तो इंडस्ट्री का जो भी काम हो रहा है, वॉट एवर वर्क इज देयर, दैट इज डन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड देयर। तो गवर्नमेंट हियर स्टेप्स इन टू प्रोवाइड एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच द इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड। अब देखो गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रेट्स आर हाई, so government provides electricity to the company or industry, to the company or industry at a rate where they can afford it. हर तरह का तो वो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट चिप्स इन, गवर्नमेंट कम्स इन कि हाँ ठीक है आप करो, यू ले डाउन द वो। एंड ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज लेस, लेकिन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट ऑन अ सब्सिडाइज्ड रेट। नाउ व्हाट इज सब्सिडाइज्ड? सब्सिडाइज्ड रेट इज दैट रेट जिसमें कि गवर्नमेंट बियर्स सम कॉस्ट। कॉस्ट इफेक्ट तो कम नहीं कर सकते ना, जितना पैसा लगेगा उतना तो लगेगा ही, बट द इंडस्ट्री सेज दैट आई कैन नॉट प्रोवाइड, आई कैन नॉट इन्वेस्ट सो मच ऑफ मनी, और आई कैन नॉट गिव सो मच ऑफ बिल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। तो गवर्नमेंट सेज ओके इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा सा कम दे देना, बट कैरी ऑन योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। गॉट इट चिल्ड्रन? So this is what private and public sector we were dealing about. One thing I just wanted to show you in the book itself, children. Come, let's see it. So students, I wanted to tell you that I wanted to show you something from the book itself. यहाँ पे so many activities are taking place around us. हमारे आसपास में इतनी activities हो रही हैं, तो क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा। रिमेंबर वी वर ऑल्सो फाइटिंग ऑन वन ऑनलाइन, यस, कि प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है या टर्शियरी में है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो क्राइटेरियन हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि प्राइमरी किसको कहेंगे, सेकेंडरी में which are the categories included in the secondary and then the tertiary. तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़ को व्हेन वी आर सेग्रीगेटिंग, तो इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ एक्टिविटी। आखिर किस तरह का काम कर रहे हैं, इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे वी वर एबल टू एनालाइज द पैटर्न ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि what is the production happening and how many people are involved in that production. Same way, similarly we divided the economic activities. Economic activities को हमने organized and unorganized में divide कर लिया था, and employment that is there in the two sectors we try to identify that. इसमें जो सबसे important conclusion that was coming out was from the classification exercises. क्या क्या हम लोगों ने, we have classified the primary and the secondary sectors. Remember the classification that is done, on what basis this classification has been done, and what were the problems and solutions that were there indicated. तो ये सारी चीज़ें जो हैं we are summarizing in this tabular form that is mentioned here. तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी को वी हैव आइडेंटिफाइड इनटू क्राइटेरिया। हमने क्या यूज़ किया, नेचर ऑफ एक्टिविटी, किस तरह का काम कर रहे हैं, डायरेक्ट नेचुरल में कर रहे हैं या इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं या इंडस्ट्रीज से निकल के आके कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स वी हैव सीन। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड को हमने किस तरह, इट वाज अकॉर्डिंग टू दी वर्किंग कंडीशंस। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड का सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या था, द वर्किंग कंडीशंस, आदमी किस तरह के कंडीशंस में काम कर रहा है, इसी चीज़ के थ्रू हमने आइडेंटिफाई किया। और उसमें कंक्लूजन क्या था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में,
that each and every sector needs extra importance and extra care. Organized and unorganized may we need to take some steps to improve the workers in the unorganized sectors, and problems indicated and how they can be tackled. क्या क्या problems हमको सामने नजर आए और इन problems को हम कैसे tackle कर सकते हैं. Got it, children? So you have to do this table. Please complete the table and we'll be meeting in the next class. Okay, children? Thank you so much and all the best to you.